with candles, right? Green candle सबको पता है. Then we have bearish engulfing candle, full body green candle, full body red candle. दो एकदम बेसिक कंसेप्ट हो गए. आफ्टर दैट देन देयर इज कॉम्प्लेक्स कैंडल्स दैट कम. कॉम्प्लेक्स कैंडल यानी क्या कि कोई डोजी बनता है या फिर हैमर बनता है या फिर शूटिंग स्टार, इनसाइड कैंडल. तो दोज आर पैटर्न्स दैट वी कैन डिस्कस. बट फॉर अ ऑप्शन बायर व्हाट वी नीड इज फोर्स. प्राइस अगर भागे नहीं तो इट इज अ लूजिंग ट्रेड फॉर अस, राइट? इफ द प्राइस इज नॉट मूविंग फास्ट इनफ देन इट इज गोइंग टू बी अ लूजिंग ट्रेड फॉर अस. तो हमारे लिए एज अ ऑप्शन बायर यू हैव टू हैव दिस इन योर माइंड इनग्रेन्ड कि अगर ये अच्छा कैंडल है, अच्छा कैंडल यानी क्या, एक तो फुल बॉडी ग्रीन कैंडल या फिर फुल बॉडी रेड कैंडल, अगर वैसा कैंडल ना हो तो मुझे वो ट्रेड लेना नहीं या फिर आई शुड नॉट बी एंटरिंग दैट ट्रेड. दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू हैव टू पुट इन योर माइंड. तुम बोलोगे यार सर आपने तो उधर ले लिया था, तो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ सपोर्ट. This is a support. Why? Because last, if you see so many days if you see this area, again and again price was rejecting this, and here we had a breakout. So one concept is candle structure, second is volume. Volume is very 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 important for an option buyer. Volume means क्या कि you have to look at future chart, and once you look at a future chart, go to your chart. If you have any chart setting, go to your chart and see how much volume was created here and what was the volume created here. I would want everyone to go through that. Please go through a chart and look at what was the volume created here. Go to a future chart and see the volume that was created here in these candles. You will see a big difference. आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, वो कम था, और यहाँ पे जब वॉल्यूम क्रिएट हुआ तो दैट वॉल्यूम वाज क्वाइट लार्ज, राइट? हम देख सकते हैं. Yeah, see this? So what is this called? The price is ascending, price is going higher, and the volume, see this volume? Volume is also going higher. So this is a very very convincing, or this is a very very good trade that we can look at. Last so many days, this was the ring. So what happened was here, if you observe, this is where we got a breakout and volumes were very good. And today what happened again? First candle, first 5-minute candle, if you see, you will see large volume. From there it is taking support. Now, if anyone is taking a momentum trade, or if somebody is taking a positional trade, if you're taking a positional trade, this area will be your stop loss. This area will be your stop loss, that is 41,800 around. Now from here on we can look at target of 42,000 or 42,400 also. One hour chart. Give me 1 minute. If market comes down from here, this 20 EMA will be my first round of support. Then I use 50 EMA and 200 EMA also. EMA, that is exponential moving average. If you want, you can write it down. Sir, can you repeat again? Yeah, I use 3 moving averages. But
Everyone can see? Yeah. Okay. So this is the moving averages I use. Moving average exponential 20, 50 and 200. And then I use VWAP which has a default setting. So these indicators and the price action, it is more than enough for us to make money. The more simple we keep things, the more better for us. 10-50 इंडिकेटर लगा के इसका कर्व उसका कर्व ये वो कोई जरूरत नहीं, not necessary. If we only understand the behavior, that is more than enough for us to be successful in the market. Most important in trading is, apart from these moving averages, is what we look at or how we look at the indicators. Okay. Now I'll explain in that also. So how we look at the indicators is, every indicator has a time, or every indicator has a good part, every indicator has a bad part also. Okay, but the indicator is not bad. The way we look at it is wrong, right? The way we interpret the indicator is where the problem happens. So what happens is, for many us, what will happen is, if indicator is showing that it is flat, indicator is showing it is sideways, फिर भी हम बोले अरे नहीं वरती जाणार आहे थांब, अरे नाही खाली जाणार आहे थांब, मला दिसतंय तो असा थोडासा असा तिरपा होतोय तो, मी घेतो त्याला थांब, है की नहीं? ऐसा ही होता है ना? तो इसीलिए let the indicator do the talking. Let the indicator do the talking. वो इंडिकेटर को पहले बताने तो दो, या फिर उसको अच्छे से मूव तो होने दो कि वो कौन सा डायरेक्शन जाना चाहता है. एक बार उसने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, उसके बाद तो फिर आप वो ट्रेड कितना होल्ड कर पाएंगे वही इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, व्हाई आई यूज मूविंग एवरेजेस, बिकॉज it tells me very clearly, the moving averages tells me very clearly if the market is sideways, if the market is upside, or if the market is downside. As an option trader हमको क्या चाहिए? As an option trader हमको क्या चाहिए? मार्केट किधर जा रहा है वही पता करना है ना. बाकी ट्रेड तो लेना आता है, स्ट्राइक प्राइस चूज करना तो आता है, एंट्री करनी आती है, एग्जिट भी करना आता है, बट यही नहीं पता होता कि मार्केट किधर जा रहा है. यही सबसे बड़ी दुविधा है सबके लिए. तो for us, these moving averages will tell us very, very clearly which way the market wants to go. Now, what is this moving average telling here? What are the moving averages telling you here? Sideways. Clear? Very clear? Sideways. And now what is it telling you? Once the price is moved, now what is the direction of the moving averages? Upside. कितना simple है? Still we complicate things कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए. So as we discussed, trading is more about psychology. 70-80% is about psychology or the way we interpret the market. We as traders, when we start out, we do not let the market react. हम मार्केट को नहीं, हम मार्केट के लिए नहीं वेट करते कि वो किस तरह जाना चाहते हैं. हमको कहाँ जाना है वो हम डिसाइड कर लेते हैं पहले माइंड में कि हाँ इधर ही जाना चाहिए मार्केट, या फिर मैं आज तो कॉल नहीं बैठूंगा, मैं पुट तो लूंगा ही नहीं, या फिर मैंने पुट लिया तो आज कॉल नहीं लूंगा. राइट? सो वी एज ट्रेडर्स, वी हैव टू बी वेरी वेरी डायनामिक एंड we have to understand the situation. Market is all about situation. Who is creating markets? We all together are buying and selling. That is how market is created, right? So we as traders have to be very dynamic. Now see this candle. Now it is clearly telling us, what is price telling us now? Though the moving averages are higher, but what is the candle structure telling us? That it is sideways right now. Why I am saying sideways? Because look at this first 15-minute candle. Did the price cross the high or low of the first 15-minute candle? Yes, everyone, tell me please. थोड़ा इंटरैक्टिव होंगे तो फिर अच्छा रहेगा. No, right? So what do we need to do as a trader? Wait. Simple. एक तो 15-minute कैंडल का हाई क्रॉस करने दो या फिर लो क्रॉस करने दो, उसके बाद देखेंगे. Till that time, we don't need to trade. And if you look at the levels also, 41,800 as a support, 42,000 as a resistance. So 200 point range is there. हम लड़ के भी कितना लड़ लेंगे?
10 पॉइंट मिलेंगे, 20 पॉइंट मिलेंगे. बट इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज कि हम वो 10-20 पॉइंट के चक्कर में हम 10 ट्रेड ले भी लेंगे. वी विल टेक 10 डिफरेंट ट्रेड्स. हम 10 ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद सोचेंगे अरे यार मैंने किया क्या, मजा तो बहुत आया बट हुआ कुछ नहीं, है कि नहीं? एक्सपायरी के दिन ऐसा ही होता है, अरे मजा बहुत आया बट बैंक में पैसा आया क्या, नहीं आया. क्यों नहीं आया? बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर वेरी वेरी स्मॉल अपॉर्चुनिटीज व्हेन द मार्केट इज टेलिंग अस दैट देयर इज नो अपॉर्चुनिटी बॉस. सो जितना कम ट्रेड करोगे, जितना पॉइंट्स कैप्चर करोगे, उतना अच्छा ट्रेडर हम बन जाएंगे. So till the time now this price does not cross the high or low, we will wait it out. Now on the downside the problem is the moving average is there. On the upside the problem is 42,000, that is the round number is there. So जब तक कुछ वो market does not resolve itself, market does not tell us clearly कि okay 42,000 is the psychological level. If that is not crossed, we don't need to do anything at all. Yeah. Comfortable with trading on based on the price, and many people I know that they trade on based on data also, which is good, no problem. But मेरे लिए वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है या फिर मेरे लिए वो अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं प्राइस देखना ये करता हूँ. Yeah. How do you identify it's a false breakout or it's a real breakout or not? वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने पूछा बट मेरे पास जवाब ही नहीं. मेरे को आज तक कम से कम 100 बार वो क्वेश्चन आया कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ फेक ब्रेकआउट और अ फेक ब्रेकडाउन. उससे के लिए कोई देयर इज नो फिक्स्ड, ऐसा कोई फिक्स्ड बोलते ना क्राइटेरिया नहीं है. फेक ब्रेकआउट हो गया, अगर ट्रेड में हो स्टॉप लॉस ले लो, एग्जिट. ब्रेक हाँ सिंपल कि अगर प्राइस नहीं मूव कर रहा है, आपके फेवर में नहीं मूव कर रहा है, तो देखो आप जितना टाइम होल्ड करते बैठोगे इट्स अ प्रॉब्लम. इफ इट्स अ विनिंग ट्रेड आप होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो. बट इफ इट्स अ लूजिंग ट्रेड डोंट डू इट. बिकॉज हमारे साथ वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम लूजिंग ट्रेड में होप में रह जाते की अरे नाही आता तरी वरती येईल, आता तरी येईल, तो खालीच चाललाय पण आपण विचार करतो नाही आता तरी वरती येणार आहे, दुपारी तरी येईल, रात्री तरी येईल, कधी तरी येईल, पण मग तो येत नाही वरती. Sir, one second. I just wanted to understand. Yeah. You have allotted 10 lakhs for this morning's trade, right? Not 12 lakhs, I think 3,000. No, just for example, 10 lakhs. Example. Okay, roughly 10 lakhs. हाँ. So while coming down, people are saying that there is a during a losing, you don't have to be average, but हाँ. you keep on averaging, right? Yeah. Why? That was because my stop loss was the first 5-minute candle low. First 5-minute candle. Candle low. That was my stop loss. So this area was my stop loss. तो मेरा थोड़ा एग्जीक्यूशन मेरे को Sir, करने नहीं आ रहा था इसलिए. आप कितने समय तक मतलब कितने टाइम तक आप उसको एवरेज करेंगे हाँ, नीचे? तो अगर if this could have ended as a full body candle, I would have exited the trade. ये full body अगर रेड कैंडल होता या फिर ये लेवल ब्रेक हो जाता, तो I would have exited that trade. I wouldn't have been in that trade. So maximum 2 times or 3 times you average it. हाँ मैक्सिमम 2 or 3. हाँ maximum. एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जब यूज कर ट्रेड करता हूँ तो आई विल ट्रेड फटाफट से क्वांटिटी आई विल टेक, बट मैं थोड़ा लर्न कर रहा था कि वो नए प्लेटफॉर्म के बारे में, इसलिए फिर थोड़ा ये या फिर जनरली क्वांटिटी ऐड हो जाता है फटाफट से. गुड मॉर्निंग सर. सर आपने जो अभी लेवल्स ड्रॉ किए, तो आप सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल ड्रॉ करते हो या फिर कुछ नहीं साइकोलॉजिकल नहीं. देखो ये लेवल अगर देखे ये हाँ 41,800, दैट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल लेवल, दैट इज अ रेजिस्टेंस. आप अगर देखोगे 5-6 दिन का अगर चार्ट देखोगे, ये देखो 50 मिनट में देखते हैं. देखो 41,650 था एक लेवल, राइट. 41,650 वाज वन लेवल जहां पे बार बार वो रिजेक्ट कर रहा था. ये देखो यहाँ पे 41,650. उसके बाद ये जो हाईएस्ट पॉइंट था लास्ट 6 तारीख से समझो, 6 तारीख का हाई था 41,720, और ये कौन सा था 8 तारीख का जो हाई था वो था 41,790.
राइट? यस सर। और सर आप लेवल्स ब्रेकआउट होते तो उसका कंफर्मेशन आप कैसे लेते हो? कैंडल स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम, वहां पे वो जो प्राइस है, अभी फॉर एग्जांपल कल का आप देखोगे, कल का ये कैंडल स्ट्रक्चर देखिए, ये अच्छा कैंडल स्ट्रक्चर है, बुलिश है। यस सर। सो ऑलवेज रिमेंबर, ब्रेकआउट का भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है जहां पे आप उसको अच्छा ब्रेकआउट मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में एक कहावत है कि एमेचर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल्स क्लोज द मार्केट। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि एमेचर्स ओपन द मार्केट बट द प्रोफेशनल्स आर द वंस हु विल क्लोज द मार्केट। सर लेकिन अगर हमारे जैसे जो बायर्स से हाँ। तो हम कंफर्मेशन मतलब जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसका अगर रिटेस्ट करती है फिर से, तब हम तब ले या फिर अभी आपने जो बोला है जो बड़ी वाली हाँ, candle है? देखो अभी कल क्या हुआ था, जैसे हमने बोला कि एमेचर्स और वो एग्जांपल हमने बताया, तो प्रोफेशनल्स या फिर जो लोग क्लोज करते हैं मार्केट को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट को हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज किया। ओके, सो अगर कोई चीज 7 दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज होती है तो हम उसको क्या समझेंगे? इट इज अ बुलिश ब्रेकआउट एंड इट इज अ ब्रेकआउट दैट विल सस्टेन, राइट? सो जैसे ये चीज हुई, तो अगर हम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल देखें, उसने बस इधर विक बनाया, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है, उसने ये जगह पे विक बनाया है और वहां से उसने 200 पॉइंट का मूव दिया। अभी क्या होगा, मैं साइकोलॉजिकली बताता हूँ, ये सच हो या नहीं मेरे को नहीं पता, बट साइकोलॉजिकली मैं कैसे पढ़ता हूँ मार्केट को मैं बताता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि ये रेंज बनाया जा रहा है 41,800 टू 42,000। ये रेंज क्यों बनाया जा रहा है? वो बोलते हैं ना कि गावाला जमा करायचा प्रयत्न चालू आहे, सगळ्या गावाला जमा करतील, सगळ्यांना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करू देतील। ओके, सबको ऐसे कंफर्ट जोन में डाल देंगे कि हाँ चलो 41,800 42,000 है, ये रेंज में मार्केट रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कंफर्ट जोन क्रिएट किया जाएगा ताकि क्या कि लोगों को लगे अरे हाँ मार्केट सेलर्स है। देखो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन क्यों कब आएगा? जब सेलर उसका पोजीशन एग्जिट करना चालू करेगा, राइट? तभी डिमांड क्रिएट होगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये रेंज क्रिएट किया जा रहा है, तो मे बी 11:30 12 o'clock आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा 42,000 के ऊपर। ये क्यों होता है? ताकि जितना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ओके, उतना फियर्स मूव भी आएगा सेकेंड हाफ में। ओके, सो ये सारा जो प्लानिंग चल रहा है ये सब एक्यूमुलेशन चल रहा है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो जो बड़ा प्लेयर है उसको अगर जो ऑप्शन 200 रुपए होने वाला है, समझो 1:30 बजे 2 बजे, उसको अगर 25-50 रुपए में मिल रहा है तो वो बस एक्यूमुलेट करते जा रहा है, और उसको जब ब्रेकआउट देना है तो फिर वो 200 या 500 भी हो जाएगा। तो दिस इज अ साइकोलॉजिकल गेम और दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग दैट हैपेंस इन द मार्केट। और यही हमको समझना जरूरी है कि अभी क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन। हम इसको कंसोलिडेशन कब नहीं बोलेंगे? जब ये 41,800 ब्रेक करना चालू कर दे, जब डाउन साइड आ जाए 41,800 ब्रेक कर रहे 41,650 तक आ जाए, देन वी कैन से कि हाँ चलो 42,000 वाला जो राइटर है वो अभी सेफ हो गया है, या फिर वो उसका पैसा घर पे लेके जाएगा। अगर वैसा नहीं होता है, अगर 42,000 ब्रेक हो जाता है तो उसके आगे फिर आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। बट मेरे को मेजरली यही लगता है कि ब्रेकआउट अगर होना है तो वो सेकेंड हाफ में ही होगा, फर्स्ट हाफ में नहीं होगा। तो वी विल ऑब्जर्व, अभी हम दिन भर है तो वी विल ऑब्जर्व दैट। ये सीयू कौन है? कंट्रोल उदय, कंट्रोल। सबने ये पिक्चर देखा ना, वेलकम, नाना पाटेकर की मूवी देखी सबने? उसमें क्या बोलता है वो? कंट्रोल उदय, कंट्रोल। वो क्यों बोलता है? ताकि हमको ट्रेड करना, कंट्रोल करना है, इसीलिए। तो जब तुम चार्ट पे ये लगा दोगे ना, वो उदय तुमको बार बार बोलते रहेगा काड़ी मत कर, काड़ी मत कर। तो इसी के लिए वो रखा है। सर हाँ, तुम्ही ऑप्शन ग्रीकचा पण यूज करता का म्हणजे स्टडीज मध्ये? नाही, जास्त नाही, म्हणजे सो दॅट इज हाऊ आय जनरली फॉलो. Yeah, Monday, Tuesday and Friday. If you want, you can write it down. Monday, Tuesday, Friday. I trade an option which is around 300 rupees. वो call हो, put हो, कुछ भी हो सकता है. I trade an option which is around 300 rupees, and
Wednesday and Thursday, I trade an option around 150 or 200 also. So basically the logic is that, and at the money, fair price, at the money, on Monday, Tuesday and Friday, it will be around 300 rupees. And at the money, on maybe Wednesday and Thursday, it will be around 150, 200 rupees. Thank you, sir. Overnight, huh? Overnight, so I had carried one position, I just booked my profit. So overnight is again, yeah. So my decision making was that. So my decision making on this overnight position was market is closing at a high of last 4 or 5 days. So for me, the deciding factor is the level, obviously. That after how many days that the market is closing above certain level. That is when I carry. So 99% of the times I will not carry overnight position. 99% of it. There is only 1% of the time where the market will convince me कि हाँ, now you can carry an overnight position. Now that conviction was just because of the closing of the market. Simple. Yes. सर एक पूछना था कि हाँ। हर दिन के लिए टाइम फ्रेम जो है वो सेम रखते हैं, जैसे आपने बोला मंडे के लिए कुछ अलग, मतलब ऐसा जैसे एक्सपायरी डे के लिए 1 मिनट का चार्ट देखना है, 3 मिनट का नहीं, वो टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है. मैं टाइम फ्रेम वही रहेगा, 5 मिनट्स और 50 मिनट्स रहेगा. देखो 1 मिनट बहुत लोग बोलते हैं कि सर 1 मिनट क्यों नहीं करते. देखो जितना आप छोटा टाइम फ्रेम देखोगे उतना छोटा आपका ट्रेड भी होगा, बराबर. जितना छोटा आप कुछ लोग 30 सेकंड में भी ट्रेड करने लग गए. So the smaller the time frame, the smaller is going to be a trade. So that is the problem. That's why I don't want to look at 1 minute, because 1 minute if you see, बहुत बार ऐसा होता है कि गैप में खुलता है कैंडल, बहुत बार होता है कि गैप में खुलता है कैंडल, तो फिर प्राइस स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा ठीक से, फिर you won't be able to trade properly. So I would say minimum is 5 minutes, maximum you can look at 1 hour or 1 day also. और एक पूछना था, जैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे 10% मार्जिन आपने बोला, तो प्रॉफिट के लिए ऐसा कुछ रहता है कि आपके माइंड में कि इतना होने के बाद, या जैसा चार्ट दिखता है उस हिसाब से? चार्ट के हिसाब से तो आई कीप ऑन ट्रेडिंग. फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी 3400 क्वांटिटी था, तो इफ द प्राइस इज गोइंग इन माय फेवर, मेरे फेवर में आ गया, प्राइस 20 पॉइंट आ गया, तो मैंने समझो 500 कम कर दिए, और 20 पॉइंट आ गया तो और 500 कम कर दिए. तो आई डू इट इन अ स्टैगर्ड मैनर. आप चाहिए तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे मेरे वीडियोस भी है, आप वो भी देख के उस पर भी आपको काफी अंडरस्टैंडिंग आएगा कि क्या होता है ना. देखो जब हम ट्रेड लेते हैं तो ये सबका प्रॉब्लम होगा कि हम ट्रेड जब निकालते हैं तो जल्दी निकालते हैं, और जब रखते हैं तो बहुत ज्यादा रखते हैं. स्टॉप लॉस हम रखते नहीं है, स्टॉप लॉस माइंड में होता है और स्टॉप लॉस नीचे चला ही जाता है. स्टॉप लॉस का कोई लिमिट नहीं होता, बट टारगेट हम इमीडिएटली छोड़ देते, राइट. तो जब इनिशियली मेरे को भी प्रॉब्लम होता था ऐसा, तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी है या 200 क्वांटिटी है, तो मैंने खुद को हैबिट लगानी शुरू की. वो हैबिट कैसे शुरू की कि समझो अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज ब्रेकआउट है, तो 100 क्वांटिटी है, तो मेरे को तो एंजाइटी है कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, अरे पटकन काढायचे, पैसे दिसत आहे प्रॉफिट, तो पटकन काढायचे, घाई असते सगळ्यांना, बरोबर. तर मी काय करतो, 50% I will reduce, 50% I will reduce, and the next 50% I will have comfort कि चलो 4 लॉट है, उसमें से 2 लॉट तो निकाल दिए, 2 लॉट बाकी है, तो वो 2 लॉट के लिए मैं एटलीस्ट थोड़ा सीख जाऊं कि वो ट्रेड को होल्ड कैसे करूं. दैट इज हाउ यू हैव टू इंक्रीज योर पेशेंस. तुम्हारा पेशेंस तभी आएगा जब तुम ट्रेड होल्ड करना सीखोगे, और वो कब सीखोगे, जब तुम आधा क्वांटिटी निकाल दोगे और आधा क्वांटिटी तुम होल्ड कर पाओगे. जब तुम कोई ट्रेड को 100-200 पॉइंट तक लेके जाओगे तभी तुमको अच्छा लगेगा और एक कॉन्फिडेंस भी फील आएगा कि हाँ चलो मैंने ये यहाँ से ऐसा खुद को करके दिखाया. तो नेक्स्ट टाइम इफ दैट सेम ट्रेड कम्स यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो ठीक है, आई कैन एटलीस्ट होल्ड टिल दिस लेवल. हॅलो सर. सर डेटाबेस ट्रेडिंग करायची असेल तर कोणता डेटा बघितलं पाहिजे? ओपन इंटरेस्ट, ओआय ओपन इंटरेस्ट. अजून सर काय बाकी नाही काय, डेटाबेस ओपन इंटरेस्ट बेस्ट आहे. ओके सर, थँक्यू. बिल्डअप चेक करता का तुम्ही? हा? बिल्डअप लॉंग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप नाही, ते कॅन्डल वरून कळून जातं की लॉंग बिल्डअप आहे की नाही. बेसिकली आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, हाँ. ये 15 मिनट्स, हाँ 15 मिनट्स में मतलब 15 मिनट्स में आपने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया उसी को फॉलो उसी को फॉलो करते हैं. हाँ.
बोलले की फर्स्ट 5 मिनिट्स ची कॅन्डलचा लो High low. हाय लो तर मग फर्स्ट ट्रेड तुमचा नॉर्मली तो 9:15 to 9:30 मध्ये असतो आणि मग सेकंड 12:30 हा सेकंड नंतर मग सेकंड डिपेंड करतो. आता खूप वेळा व्हॉलिटिलिटी पण असते, मग तेव्हा आपण चांगला ट्रेड घेतो. नसेल तर मग काय प्रॉब्लेम. अभी देखते हैं 20 में पे क्या होता है. हेलो सर. एक मिनट लेट्स ऑब्जर्व क्या होता है यहाँ पे. लेट्स सी 1 आवर का कैंडल बन गया क्या? ओके चलो ये लेवल पे क्या होता है देखते हैं. कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैंडल क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये है साइकोलॉजी. अभी क्लोजिंग देखते हैं कहां पे होता है. हेलो यस सर, बोलो सर. आप दो टाइम फ्रेम यूज करते हैं 15 मिनट और 5 मिनट का, तो ये दोनों का क्या अर्थ होता है सर? आप तो ट्रेड 5 मिनट पे लेते हैं. हाँ एंट्री 5 मिनट पे लेते हो, एग्जिट 15 मिनट पे करेंगे. अच्छा, और सुबह का ट्रेड आपने 9:15 को ही किया था. हाँ सुबह का ट्रेड नहीं. हाँ, लेकिन 5 मिनट का कैंडल भी नहीं बना था, तो आपने ट्रेड कैसे लिया? हाँ क्योंकि प्रीवियस डे का एनालिसिस था. प्रीवियस डे का एनालिसिस था कि 42,000 ये रेजिस्टेंस हो सकता है. फर्स्ट एक बार तो भी वो उधर रेजिस्टेंस लेगा और 41,800 अपने लिए सपोर्ट है. अच्छा. तो जैसे मार्केट बीच में खोला उसके, तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस, अभी इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो ये कॉन्फिडेंस था कि एक बार तो भी वो वहां पे जाके टच करेगा. वो मंदिर के दर्शन करके एक बार आएगा, बाद में फिर वो थोड़ा वो आजू बाजू घूमने जाएगा फिर मंदिर के. यस सर, थँक्यू सर. हॅलो यस सर, ऑप्शन बायरने पिरॅमिडिंग केली पाहिजे की ऍव्हरेजिंग केली पाहिजे? पिरामिडिंग केली पाहिजे. पिरामिडिंग इज बेटर देन एवरेजिंग. तो एक बार सपोर्ट आ गया, बस अभी देखते हैं फिर क्या होता है. किसने डेयरिंग की क्या कॉल लेने की नीचे? नहीं. ओके ठीक है, कोई नहीं. तो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम भी आया होगा, अगर देखते हैं आपको. चलो आज भी क्या हो रहा है, गैप अप हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, एंड देन इट इज मूविंग. सो ये बिहेवियर जो है, ये बिहेवियर हमको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्या हो रहा है, मार्केट को जल्दी नहीं है. ये मार्केट ऐसा बोलते हैं हम कि इसको जल्दी नहीं ऊपर जाने की या फिर नीचे आने के लिए. It wants to take its own sweet time to move. Why? Because कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट में. जैसे कि रिजल्ट्स हो या फिर बहुत ज्यादा बुलिश हो मार्केट, या फिर कोई वर्ल्ड मार्केट का कोई सिनारियो, ऐसा कोई अभी फिलहाल कोई सिनारियो है नहीं. इसीलिए मार्केट अपनी स्पीड से अच्छे से बिहेव करके या फिर सपोर्ट क्रिएट करके, रेजिस्टेंस क्रिएट करके मूव कर रहा है मार्केट.
ब्रेक ले ओके सो द ट्रेड इज ओपन ये ट्रेड मैं ओपन रखूंगा फिर अपन नेक्स्ट हाफ में देखते हैं कि क्या होता है तब तक अपन टेक अ ब्रेक या ओके ठीक है So guys, we have a break for 15-20